Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your computer class. I, Aanchal Singh, welcoming you all once again to your computer class. So class, in our previous session, we have started with the new topic, that is chapter number 3. ओके तो हमने जो हमारा पिछला सेशन था उसमें हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था. दैट वाज एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट. ओके, सो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू अबाउट द एल्गोरिदम. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ओके, सो अगेन टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विथ चैप्टर नंबर 3, दैट इज एल्गोरिदम एंड flow chart. So all of you kindly open your books at page number 16, that is algorithm and flow chart. So I'm just writing the topic here, that is chapter number 3, algorithm, just a minute, that is algorithm and flow chart. That is algorithm and flow chart. So this was the topic that we were doing, that is algorithm and flow chart. Now, so I have already give you an introduction about that what is algorithm. देखिए algorithm क्या होता है? Algorithm is the step by step procedure that we follow to complete a particular task or to achieve a desired goal. Okay, तो algorithm क्या होता है? हम जो step by step procedure follow करते हैं, जो भी हमारा objective है उसको achieve करने के लिए, to achieve our objective, to complete a work, to complete a task or to achieve your aim. Okay, so the steps that you follow is known as algorithm. So yesterday I have given you certain examples as well. Okay, so procedure I have just मैंने क्या आपको बताया that I have given you certain examples like if you want to eat the, मैंने आपको चपाती की एग्जाम्पल दी थी कि अगर आपको रोटी खानी है तो आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे. If you want to become a doctor, so what steps you are going to follow, how in the studies. Okay, and the third example I have given, that is already given in your book, that if you want to purchase a new shirt, so what are the different steps that you need to take if you want to achieve that purpose. देखिए अब इसमें आपको कि मैम गोल क्या है? गोल जरूरी नहीं है बेटा जो हम पढ़ाई करके बड़े बनना चाहते हैं. गोल मतलब कोई भी ऐसा काम जो कि आप चाहते हो कंप्लीट करना. सपोज आप चाहते हो कि दैट यू वांट टू क्लीन योर रूम. ओके, यू वांट कि अब मेरा बहुत दिन से मैं इस रूम को मैंने अच्छे से सेट नहीं किया, साफ नहीं किया, सो यू वांट टू क्लीन योर रूम. सो that the thing that you wanting is that you want to clean your room. This is also an objective, this is also your aim. ये भी आपका एम है कि मुझे अपना रूम है जो एकदम साफ सुथरा करना है. ठीक है, so here one more example was there and then that is given at page number 17. Okay, so देखिए here the below it is given an algorithm to find the greater number out of 2. देखिए नाउ एल्गोरिदम. अब देखिए मैं भी कहूंगी एल्गोरिदम यूज, प्रोसीजर की जगह मैं आपसे कह रही हूँ द एल्गोरिदम. एल्गोरिदम मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोसीजर दैट आई एम फॉलोइंग टू फाइंड द ग्रेटर नंबर आउट ऑफ 2. दो में से कौन सा नंबर ग्रेटर है? जो दो नंबर्स हमें दिए हुए उसमें से कौन सा नंबर ग्रेटर है उसे फाइंड आउट करने के लिए, उसे ढूंढने के लिए जो मैं एक प्रोसीजर फॉलो कर रही, जो मेथड मैं फॉलो कर रही हूँ, दैट इज नोन एज एल्गोरिदम्स. ओके, so now I'm not going to use the word procedure or method. मैं procedure या step by step use नहीं करूंगी. I'll pronunciate the word algorithm. I'll use the word algorithm. Okay, an algorithm to find the greatest number out of 2. दो numbers दिए हैं, उसमें से हमें एक greatest number find out करना है. तो उस number को find out करने के लिए हम क्या procedure, क्या method follow करेंगे? Step 1, start. So we will start. Step 2, take two numbers, so we will take any two numbers. Step 3, compare these two numbers. If A is greater than B, then go to step 4, or else go to step 6. Okay, तो देखिए
देखिए मैं आपको यहाँ पे एल्गोरिथम की स्टेप बताती हूँ बेटा। देखिए द स्टेप 1 इज, ये मेरे स्टेप्स हैं। ओके, क्या स्टेप हम फॉलो करेंगे? स्टेप 1, द स्टेप 1 इज स्टार्ट। ओके, दैट इज स्टार्ट। स्टेप 2 इज टेक 2 numbers. Take 2, यहां पे 2, कोई भी 2 नंबर्स दीजिए। टेक 2 numbers. थर्ड इज कंपेयर। कंपेयर करेंगे दोनों नंबर्स को। क्या कंपेयर करेंगी कि A इज ग्रेटर देन B, कि A B से बड़ा है, या तो अगर A B से बड़ा है देन गो टू स्टेप 6, सॉरी देन गो टू स्टेप 4, देन गो टू स्टेप 4 और एल्स, ये पूरा एक है, एल्स गो टू स्टेप 6। अभी देखो इसको पहले मैं लिखती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ। बस आप स्टेप के नंबर्स याद रखना बेटा। फोर्थ स्टेप इज प्रिंट A इज ग्रेटर। प्रिंट A इज ग्रेटर। ओके, ये भी हमारा फोर्थ स्टेप हमने लिखा है। फिफ्थ स्टॉप। फिफ्थ stop. Sixth step is print B is greater. Print B is greater. Print B is greater, and the last is step 7. Go to स्टेप 5। अब देखो इसको समझने के लिए बहुत ध्यान से समझिए। इसको मैं 2 तरीके से समझाऊंगी। देखिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, दैट यू वांट टू कंपेयर द 2 नंबर्स। आपको 2 नंबर्स कंपेयर करने हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है। सबसे पहले आप क्या करोगे, यू विल स्टार्ट, फिर कोई भी 2 नंबर्स लोगे, फिर आप एक नंबर A है, दूसरा B है, तो कंपेयर करके आपने क्या देखा, A इज ग्रेटर देन B। अगर आपका एक B से ग्रेटर है तो आपको 2 नंबर्स को बताना है ना, कि आपको ये बताना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। सो A इज ग्रेटर देन B। सपोज आपकी ये कंडीशन फुलफिल होगी कि A हमारा बड़ा है, तो दैट मीन्स आपका सीधा रिजल्ट आप प्रिंट करेंगे, दैट इज A इज ग्रेटर देन B। ओके, आपने कंपेयर किया A इज ग्रेटर देन B, आपका आंसर सही था कि A B से बड़ा है, तो उसके बाद हम सीधा अपना आंसर लिखेंगे, प्रिंट A इज ग्रेटर देन B। उसके बाद स्टॉप, उसके बाद खत्म। ठीक है, तो पहला हमने कौन सा स्टेप फॉलो किया, 1 2 3 में हमने ये देखा कि A B से बड़ा है, तो फिर उसके बाद हमने 4th स्टेप फॉलो किया, एंड देन 5th स्टॉप। एक तो हमने 1 2 3 4 5। नेक्स्ट, अब फिर से अगर सपोज आपका A जो है वो B से बड़ा नहीं है, तो आप क्या करोगे। ठीक है, आपने क्या किया, और फिर आप क्या करोगे, अगर आपका A B से बड़ा नहीं है तो आप क्या करोगे, स्टेप 6 पे जाओगे। अगर आपका A B से बड़ा नहीं, तो दैट मीन्स क्या बड़ा हुआ, B बड़ा हुआ ना। इफ A इज नॉट बिगर देन B, दैट मीन्स B इज बिगर देन A। अगर 1 2 से बड़ा नहीं है, तो दैट मीन्स 2 तो 1 से बड़ा है ना। तो इसका मतलब तो क्योंकि हमने 2 ही नंबर्स लिए, या तो वो बड़ा होगा, या A बड़ा होगा, या B बड़ा होगा। अब हमने जब स्टेप 3 पे देखा कि अगर A B से बड़ा, तो अब तो हमने सीधा रिजल्ट प्रिंट आउट किया और निकाल दिया। बट जब हमने कंपेयर किया, अगर हमने, अब ये मैं दूसरी कंडीशन ले रही हूँ, जब मैंने देखा कि नहीं A B से बड़ा नहीं है, सो दैट मीन्स अगर A B से बड़ा नहीं है, सो दैट मीन्स B इज ग्रेटर देन A। नाउ आई कैन सी दैट B इज ग्रेटर देन A। तो अब हमारे पास क्या आ गया, देखो उन्होंने कहा था कि अगर A B से बड़ा हो तो स्टेप 4 पे जाओ, प्रिंट करो रिजल्ट और स्टॉप। अगर कहते देन गो टू स्टेप 4, ओके, एंड देन स्टॉप 5th पे खत्म। और अगर नहीं है, और एल्स गो टू स्टेप 6, मतलब कि अगर A B से बड़ा नहीं है तो B A से होगा। फिर अब क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या जाएंगे डायरेक्ट स्टेप 6 पे, 4 और 5 पे नहीं जाएंगे, वी विल गो टू स्टेप 6।
तो दैट मीन्स बी इज ग्रेटर देन 6। अब बी हमारा 6 पे हो गया ग्रेटर, एंड देन उसके बाद अब हमने प्रिंट रिजल्ट कर लिया, अब क्या रुक जाएंगे हम, स्टॉप। ये नहीं है कि प्रोसीजर में वी विल फॉलो कि पहले ये स्टार्ट ये वो, नो, वी विल चेंज द नंबर। देखिए पहले हमने क्या किया, जब जिस केस में हमारा ए इज ग्रेटर देन बी, जब हमारा ए बी से ग्रेटर था तो फर्स्ट स्टेप स्टार्ट, सेकेंड स्टेप टेक 2 नंबर, थर्ड स्टेप ए इज ग्रेटर देन बी, फिर फोर्थ स्टेप प्रिंट ए रिजल्ट, फिफ्थ स्टॉप। ओके, अगर अब जब हमें पता लगा नहीं ए नहीं बी बड़ा है ए से, तो हमने क्या, फिर इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप तो हमारा वही रहेगा, सेकंड भी वही रहेगा। अब थर्ड पे आके हमें पता लगा कि नहीं ये नहीं बल्कि बी बड़ा है हमारा, ठीक है, तो थर्ड स्टेप्स की बजाय हम अब डायरेक्ट किस पे जाएंगे, प्रिंट। अब देखो हमारा बी बड़ा है तो ना ये स्टेप आएगा ना डायरेक्ट ये स्टेप आएगा, दैट मीन्स पहले हम प्रिंट करेंगे, रिजल्ट निकालेंगे कि दैट बी इज ग्रेटर देन ए। उसके बाद अब हमने प्रिंट रिजल्ट निकाल दिया, अब हम स्टॉप करेंगे, दैट इज 5। ओके, सो दीज आर द स्टेप्स, ठीक है। अब उसके बाद रिजल्ट प्रिंट किया एंड देन गो टू नेक्स्ट स्टेप, दैट इज 7, दैट इज गो टू स्टेप 5, दैट मीन्स वी नीड टू स्टॉप। तो दिस इज नोन एज एल्गोरिदम। सो दैट मीन्स वी हैव, देखो हमने 2-3 कंडीशन साथ लेके चलते हैं, ये नहीं कि अगर ये नहीं हुआ तो ठीक है वो होगा, तो हमने स्टेप के जो नंबर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। ओके, सॉरी, जो स्टेप्स फॉलो करे वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एल्गोरिदम, दैट इज नोन एज द प्रोसीजर दैट वी यूज टू that we follow or that we use to achieve our desired aim or achieve our desired goal. Clear? चलिए, so this is the algorithm. Okay, चलिए नेक्स्ट देखिए। Now the next topic is flow chart. Flow chart आपने I think पहले भी किया होगा शायद in the class previous class 4. You must have done the flow chart. Okay, so let's begin with the flow chart, the second topic and very interesting one. That is flow chart. Okay, now what is flow chart? अब flow chart क्या होता है बेटा, what is flow chart? So flow chart is a diagrammatic flow chart is a diagrammatic representation of a problem solving process, that is algorithm. Okay, it is called a flow chart as it charts the flow of a program. Okay, the direction of flow in a flow chart is always from top to bottom. Okay, in a flow chart each person is represented using different specific geometrical symbols. These symbols are connected to each other by arrows to show the operations. Okay, देखिए, here I am talking about the flow chart. सबसे पहले flow chart देखिए, flow chart का मतलब होता है, जैसे कि हमने algorithm में क्या किया, algorithm and flow chart they both are similar, near about similar, but उसको जो representing, जो उसकी representation होती है that is different. Algorithm also tell you the process step by step method. फ्लो चार्ट ऑल्सो टेल्स यू द स्टेप बाय स्टेप, मतलब फ्लो चार्ट भी आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा है और एल्गोरिदम दोनों बता रहे हैं, बट जो उनको लिखने का तरीका है, अब जैसे कि अब मैंने आपको एल्गोरिदम का भी दिखाया था, स्टेप 1 पहले हम ये करेंगे, स्टेप 2 दिस, स्टेप 3 ये, बट फ्लो चार्ट में वी मेक इट इट डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, उसको हम डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। अब जैसे मैंने आपको भी लास्ट चैप्टर में अगर आपको मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स बताया था कि ओके, नॉट क्लासिफिकेशन एक्चुअली था हमारा टॉपिक, व्हाट आर द डिफरेंट जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की डिफरेंट जनरेशंस कौन सी हैं। ओके, जैसे हमारा टॉपिक था व्हाट आर डिफरेंट जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, तो आप क्या बोलोगे, फर्स्ट जनरेशन लिखे तो डिफरेंट जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर आर नंबर 1 2 3 4 5, या तो आप ऐसे करोगे, या आपको अगर बोला जाए उसी चीज को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आपको बोला जाए दैट यू टू हैव टू रिप्रेजेंट द जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर डायग्रामेटिकली, कि आपको डायग्राम के थ्रू बताना है कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कौन सी है। तो आप ऊपर क्या लिखोगे, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फिर उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, 1 2 3 4 5, एंड इसके नीचे इसका नाम लिखोगे, यही करोगे ना। तो वैसे ही बेटा जब हम उसको लिखते हैं दैट इज एल्गोरिदम, एंड जब उसको हम डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करते हैं किसी भी फ्लो को, दैट इज नोन एज फ्लो चार्ट। ओके, बट इसको ऐसे नहीं, तो हमने हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट किया, बट
फ्लो चार्ट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड वर्टिकली. फ्लो चार्ट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड वर्टिकली. उसको हम हमेशा वर्टिकली रिप्रेजेंट करते, कभी भी हम उसको हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट नहीं करते हैं. सो देखिए, द फर्स्ट लाइन यू नीड टू अंडरलाइन. अ फ्लो चार्ट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, दैट इज एल्गोरिदम. इट इज कॉल्ड अ फ्लो चार्ट एट इट चार्ट्स द फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम. तो इसको फ्लो चार्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये किसी भी प्रोग्राम को बनाने का फ्लो बताता है. जैसे हम कहते हैं कि लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग, आपने लास्ट ईयर टॉपिक किया था लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग, या हम कहते हैं वाटर वेपर का जो इवेपोरेशन का जो प्रोसेस, उसमें क्या होता है आपने देखा होगा, वो एरो के थ्रू बताते हैं ना कि पहले वो पहले भाप बन के पानी उड़ेगा, ठीक है, फिर जाके वो बादल बनेगा, फिर वो कंडेंसेशन होगी, ठंडक होगा, फिर देन इट विल कम ऑन द रेन इन द फॉर्म ऑफ द रेन, फिर वापस से वो पानी जब इकट्ठा होगा फिर वो भाप बन के ऊपर जाएगा. ये क्या होता है? ये जो एरोज यूज करते हैं, ये क्या होता है कि मतलब इन एरोज का मतलब क्या होता है बेटा? हम बताते हैं कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा. इसका मतलब यही होता है. तो वैसे ही फ्लो चार्ट में भी हम अलग अलग इसमें भी हम एरोज यूज करते हैं बताने के लिए कि पहले ये मेथड है, फिर उसके बाद ये करेंगे, फिर उसके बाद ये करेंगे, फिर उसके बाद ये करेंगे. ओके, सो फ्लो चार्ट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड वर्टिकली. ओके, एंड फ्लो चार्ट में हम बताते हैं कि कोई भी प्रोग्राम जो हम बना रहे हैं, ओके, कंप्यूटर प्रोग्राम जो भी हम बना रहे हैं, दैट हाउ इट इज मेड, सो व्हाट स्टेप्स वी आर फॉलोइंग. ओके, इसके अंदर देखिए जो फ्लो चार्ट बनाने के लिए वी यूज अ डिफरेंट फिगर्स. तो जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है कि हर एक चीज को लिखने के लिए अलग से फिगर यूज की जाती है. ओके, जस्ट अ सेकेंड. सो फ्लो चार्ट में कोई भी फिगर को कोई भी चीज लिखने के लिए अलग अलग फिगर्स यूज की जाती हैं. जैसे ये है ओवल, ये है क्वाड्रिलेटर, दिस इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल एंड इट्स स्क्वायर. मतलब अलग अलग एरोज, सर्कल. बट इनका यूज क्या है? इनका जो पर्टिकुलर चीज लिखने के लिए दे आर ओनली पर्टिकुलरली यूज, इन्हीं को यूज किया जाता है. यू कांट यूज अदर वन, यू हैव टू यूज दिस. अब इसको कौन सी चीज को कहाँ यूज करना है, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू इन डिटेल. Okay, so first of all you need to understand the meaning of flowchart. So flowchart is the diagrammatical representation of algorithm. जो एल्गोरिदम की हम जो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंट करते हैं, डायग्राम की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज नोन एज फ्लो चार्ट. क्लियर? सेकेंड थिंग, द डायरेक्शन ऑफ इन अ फ्लो चार्ट इज ऑलवेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. तो जो फ्लो चार्ट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा टॉप टू बॉटम, मतलब वो नीचे की तरफ एरो करेगा. मतलब जितने भी फ्लो चार्ट बनेंगे उसमें जो एरो होगा वो नीचे की तरह जाएगा. मतलब इट विल ऑलवेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. शुरुआत ऊपर से स्टार्ट होगी, स्टॉप नीचे लास्ट में होगा. जस्ट लाइक एल्गोरिदम. ओके, सो फ्लो चार्ट इज द डायरेक्शन ऑफ अ फ्लो चार्ट इज ऑलवेज टॉप टू बॉटम. तो हमेशा शुरू से टॉप से शुरू होगा, बॉटम पे खत्म होगा. इन अ फ्लो चार्ट ईच ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग स्पेसिफिकल ज्योमेट्रिकल सिंबल्स. तो देखिए फ्लो चार्ट में जो भी आपको लिखना है, जो भी आपको बताना है, जो वट एवर द ऑपरेशंस और वट एवर द प्रोसेस यू आर गोइंग टू फॉलो, दैट इज रिप्रेजेंटेड और दैट इज रिटन इन अ स्पेसिफिक सिंबल. उसको एक स्पेसिफिक सिंबल के अंदर लिखना है. ये नहीं कि किसी को भी आप सर्कल के अंदर लिख लो, किसी को भी आप क्वाड्रिलेटर के अंदर लिख लो, किसी को भी किसी शेप में. सो जिस शेप में जो वर्ड आएगा वो आपको वही लिखना है. यू कांट टेक कि कहीं भी कुछ भी लिख लो. नो, you need to follow the proper method, you need to follow the proper symbol, you need to use the proper symbol for diagrammatical representation. Okay, so you need to follow the proper method, you need to follow the proper symbol, you need to use for the proper symbol for representing each operation. So this is the most important one कि आपको हर सिंबल को जो यूज करना है, वो जो सिंबल है किस लिए यूज हो रहा है, दैट यू नीड टू रिमेम्बर दैट कि इस सिंबल के अंदर आप यही लिख सकते हैं. ये नहीं कि आप स्टार्ट के अंदर प्रोसेस लिख सकते हैं, प्रोसेस वाले सिंबल के अंदर कुछ भी. नो. अब देखिए इन्होंने नीचे बताया है कि अलग अलग सिंबल्स जो हैं, किस सिंबल, कौन सा सिंबल किस चीज के लिए यूज होता है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मीनिंग ऑफ फ्लो चार्ट इज diagrammatical representation of algorithm is known as flow chart.
Okay, so diagrammatical representation of algorithm is known as flowchart. Second thing, that a flowchart is always written is always from top to bottom. The direction of the flowchart is always from top to bottom. So ऊपर से नीचे की तरफ ही direction होगी हमेशा flowchart की. Okay, and in flowchart each operation is shown in a particular, in its specific, not particular, in its specific symbol box. जो भी symbol box है उसी के अंदर ही होगा. ठीक है, दो तीन चीजें ये जो है. चलिए, now here we will start following are the some basic symbols that are used while making a flow chart. तो फ्लो चार्ट बनाते हुए हमें ये सिंबल्स बहुत ध्यान से देखने हैं. देखिए, आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू ड्रॉ इट हियर. सो द फर्स्ट इज दिस स्टार्ट एंड स्टॉप बॉक्स. स्टार्ट एंड स्टॉप बॉक्स. सो स्टार्ट एंड स्टॉप बॉक्स के लिए हम यूज करेंगे ओवल शेप. सो दैट मीन्स ओवल शेप का ही आप जो होगा उसी में आप स्टार्ट और स्टॉप लिखेंगे. अगर आपको स्टार्ट लिखना है, यू नीड टू मेक अ फिगर विद अ ओवल शेप एंड उसके अंदर आप लिखेंगे स्टार्ट, जहां से आपको स्टार्ट लिखना है. ओके, एंड जहां आपको स्टॉप लिखना है वहां भी आपको यू नीड टू मेक दिस ओवल शेप सिंबल एंड उसके अंदर यू आर गोइंग टू राइट दी stop. Okay, so that means you need to make this oval shape. तो देखिए, start and stop box, what is given in the book? It is an oval shaped symbol that is used at the beginning and at the end of the flow chart. It shows the starting and ending of a flow chart. Okay, तो ये जो हम बात करें सिंबल की, that is an oval shape. जो ओवल शेप की जो हमारे पास हमने दो शेप्स बनाई हैं. Okay, so that is used for start and stop. So these oval shaped symbols are used for start and stop. Okay, and इसको का सिर्फ दो टाइम यूज किया जाता है. जब हम फ्लो चार्ट को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं. So when we start the flow chart, at that time we use this oval shaped figure, this oval shaped symbol to write the stop, start inside it, and second is stop. Okay, so again we use this oval shaped symbol for writing the stop. So that means it is used for the two time, one at the starting of the flow chart and second at the end of the flow chart. That means जो flow chart है उसकी शुरुआत भी इससे होगी और इसका end भी इसी से ही होगा. So this is an oval shaped symbol that is used for start and stop. Clear? चलिए, moving next to the second one, that is input and output box. So now the second one is input and output box. Now I'll show you the input and output box. Okay, that is input or output box. Input and output box. Now input and output box क्या है बेटा? देखिए, okay, here it is given in a parallelogram shaped box that is used to indicate the input and the output of a program, that is the instructions related to the input and getting the results. Okay, so this is in the form of a parallelogram. Okay, this is a parallelogram. Okay, this is a parallelogram. आपने देखा होगा मैथमेटिक्स में ये फिगर आती है, ठीक है, जब हम शेप्स करते हैं उससे पैरेललोग्राम है. ओके, सो दिस पैरेललोग्राम सिंबल इज यूज्ड एज इनपुट एंड आउटपुट बॉक्स. ओके, सो नाउ व्हाट इज इनपुट एंड आउटपुट बॉक्स? इन दिस यू आर गोइंग टू राइट, यू आर गोइंग टू इनपुट द डेटा. जो भी आपको इनपुट देनी है, जो भी आप इनपुट का मतलब क्या होता है कंप्यूटर में पता है आपको? इनपुट का मतलब जो भी कंप्यूटर को आप इंफॉर्मेशन देते हैं, जो भी कंप्यूटर को आप क्वेश्चन देते हैं, जो भी कंप्यूटर को आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो आप देते हैं कंप्यूटर को, दैट इज नोन एज इनपुट. एंड जो कंप्यूटर आपको देता है दैट इज नोन एज आउटपुट. जो रिजल्ट कंप्यूटर आपको देता है, चाहे वो स्क्रीन पे हो, चाहे प्रिंटर पे हो, प्रिंट आउट हो, कुछ भी हो. सो दैट मीन्स समथिंग इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट यू गिव टू अ कंप्यूटर, either in written, either orally, or either by typing,
और मैनी अदर मीन्स, मतलब और आइदर बाय क्लिक करके, माउस से क्लिक करके भी. So the instructions that you give to a computer, that is known as input, and the result, the feedback that computer gives you back, that is known as output. और जो कंप्यूटर आपको रिजल्ट आउटपुट जो आपको रिटर्न में देता है, that is known as output. So देखिए यहाँ क्या लिखा है, it is a parallelogram shaped box. तो ये parallelogram shape का एक बॉक्स है, okay, that is used to indicate the input and output of a program. ये किस लिए यूज किया जाता है, ताकि इसके अंदर प्रोग्राम का इनपुट और आउटपुट, कि आपने क्या बताया कंप्यूटर को और कंप्यूटर ने आपको क्या रिजल्ट दिया उसका, ये उन दोनों चीजों के लिए यूज किया जाता है. सो दिस इनपुट एंड आउटपुट बॉक्स, दैट इज अ पैरेललोग्राम सिंबल, दैट इज अ पैरेललोग्राम सिंबल. ये पैरेललोग्राम्स का एक सिंबल है जो कि कंप्यूटर को जो हम इनपुट देते हैं और जो कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है, उसके लिए दिस सिंबल इज बीइंग यूज्ड. सो दैट मीन्स इन द इंस्ट्रक्शन दैट यू आर गोइंग टू गिव टू द कंप्यूटर, दैट शुड बी रिटन इन दिस सिंबल, दैट इज पैरेललोग्राम. ओके, तो आपको जो भी इंस्ट्रक्शन देनी है कंप्यूटर को, आपको इस पैरेललोग्राम की शेप का जो बॉक्स है उसके अंदर देनी है, और कंप्यूटर जो अपना आउटपुट देगा, आपको फीडबैक देगा, वो भी इसी के अंदर देगा. नेक्स्ट, okay, that is the instruction related to the input and getting the result. So that means you are getting you are giving the instruction, and even you, and although you are getting back the results. Next, processing box. The next is processing box. The third is processing box. PROCESSING, that is processing box. So now what is processing box? Let's see. It is a rectangle shaped box that is used to show the processing part of the flow chart like calculations. Okay, जो processing box किस shape में होता है? It is in form of rectangle. So this processing box is in the form of a rectangle, जिसकी टू ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. ओके, तो प्रोसेसिंग, जब हम कहते हैं ना कोई काम हो रहा हो, तो उसकी जो कहते हैं ना वो हो रहा है, कर रहा है, तो प्रोसेसिंग हो रही है उसकी. ओके, सो प्रोसेसिंग इज अ रेक्टेंगुलर शेप बॉक्स. ओके, ये जो रेक्टेंगुलर शेप का बॉक्स है, इसको हम बोलेंगे, दिस इज अ सिंबल ऑफ प्रोसेसिंग. ओके, दिस इज अ सिंबल ऑफ प्रोसेसिंग. Okay, that is used to show the processing part of the flow chart like calculation. तो फ्लो चार्ट के अंदर जो भी कैलकुलेशंस अभी हो रही हैं, जो भी काम अभी हो रहा है, दैट इज अंडर, मतलब कहते हैं ना कि मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन या अंडर मतलब दैट इज बीइंग डन, मतलब अभी हो रहा है, चल रहा है, दैट मीन्स इट्स गोइंग ऑन. ओके, सो फॉर समथिंग दैट इज ऑलरेडी दैट इज गोइंग ऑन इज प्रेजेंटेड इन दिस रेक्टेंगुलर शेप box, that is known as processing box. Okay, so especially if some calculations are going on, कोई भी calculations हो रही है specially, तो वो इस processing box के अंदर ही represent की जाएंगी. Okay, so देखिए हमने 3 तरह की, अभी तक हमने 3 तरह के जो symbols use किए. The first is an oval shape. Okay, I'm just going to revise it one more time. So rest of the 3 symbols we will discuss in the next class. सो यू जस्ट देखिए इस प्रोसेसिंग जो बॉक्स की सिंबल्स हैं, जो भी सिंबल्स हम यूज करें फ्लो चार्ट में, बेटा डोंट फॉरगेट अबाउट इट. ओके, सो द फर्स्ट इज ओवल शेप, दैट इज यूज फॉर स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए यूज किया जाता है. सेकेंड इज पैरेललोग्राम, दैट इज पैरेललोग्राम इज यूज्ड फॉर इनपुट, इट इज यूज्ड एज एन इनपुट बॉक्स. कोई भी इनपुट या आउटपुट जो आपको लेना है या देना है, दैट इज गिवन इन दिस parallelogram. The next is rectangle, so that is an processing box. So जो प्रोसेस चल रहा है, जो भी फ्लो चार्ट में काम अभी चल रहा है, प्रोसेसिंग चल रही है, that is represented in this rectangular shape box, that is processing box. Okay, so next are the decision box, flow lines and connectors. So these are the 3 more symbols that we will use in the flow chart. Okay, अब ये फ्लो चार्ट कैसे यूज होता है, that I will tell you in the next session. Okay,
So you need to understand the meaning of flowchart first and different symbols. जब तक आपको उसका मीनिंग और उसके सिंबल समझ में नहीं आएंगे बेटा, जब भी आप फ्लो चार्ट बनाओगे दैट विल मतलब हो सकता है वो गलत हो जाए. सो काइंडली रिवाइज द मीनिंग एंड एज वेल एज द डिफरेंट सिंबल्स दैट वी हैव डन अप टू टुडे. Okay, so with this, I'm just ending today's session here only. So I'll see you again very soon in our next session. So till then, everybody, have a great day.